سب سے پہلے یہ منع کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہ لے کے جائیں. پتہ نہیں مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے ان مولویوں پہ کہ جن مولویوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ مدارس کے حوالے سے جناب یہ اتنا غلط. میں یقین کریں آپ کے پروگرام میں یہ مذمت کر رہا ہوں، اس کو آپ نے ضرور یہ مذمت میری جانی ہے. میں اس مولوی کی مذمت کر رہا ہوں جس مولوی نے مرزا صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور نہیں آپ ہنس رہے ہیں، اس پہ میمز نہیں سچی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس مولوی کی بھی مذمت کرتا ہوں. مرزا صاحب اس کا نام لیں، خدا کی قسم میں اس کے حوالے سے جناب عدالت میں جا کر کیس کروں گا کہ یار اس نے کیوں ایسی بڑی زیادتی کی ہے کہ مرزا صاحب اتنے ابھی تک ان کو غصہ ہے اتنے عرصے میں کہ جناب وہ مدارس کے خلاف بول رہے ہیں. تو اصل میں یہ جناب معاملہ. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتے ہیں اسلام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انجینئر کا کچھ سڑا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. اب میرے بھائی نہ کوئی پولیٹیشین، نہ کوئی جج، نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے، وہ اسے ہانٹ کریں گے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی سٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں، پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی پکڑا گیا. باقی یہ آرٹ سے معاملات نہیں چل رہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر ہے اس میں 8 سے 700 سال پہلے لکھ کے گئے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بدفعلی والا عمل ہے، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی قاضی یعنی جج، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم اس عمل سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے. اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ جب آپ سفر پر ہوں تو اپنے بچوں کی پہنچ سے ان بزرگان دین کو دور ہی رکھے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا تھا. میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ پابندی لگائیں کہ کوئی بھی ٹین ایجر بچہ اپنے بڑے بھائی یا والد کے بغیر تبلیغ میں نہیں نکل سکتا. انہیں پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں. لو جی اس کی اگلی قسط ٹرمینیٹر 2. ہاں جی میاں 2 آ رہا ہے. اور یہ بھی نقل کرنے والا جو بیوقوف بقول مفتی صاحب کے، وہ ان کا بہت بڑا عالم ہے، عاشق الہی میرٹھی، بہت بڑا عالم دین. اب دیکھیں یہ باتیں آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب نے تو نہیں بتانی تھی، وہ تو ان دونوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا. اور جب میری ان سے ڈسکشن ان کا کہ جی انجینئر صاحب میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو زندگی قرآن پہ لگائی ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. ہم نے تو فری یہ جنرل سٹور کھولا ہوا ہے الحمدللہ، میٹرو ہے بلکہ. تذکرۃ الرشید، اس میں عاشق الہی میرٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں، یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا ساتھ قاسم نانوتوی صاحب کو، اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا، اس کے بعد کیا نکلا. وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں، یعنی کہ دلہن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. ہاں جی اب میں وہ والا مولوی تھا کہتا کہو سبحان اللہ. اچھا سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. لو جی کام بھی ختم. کوئی رہ گئی اس میں چیز مجھے بتائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ شیطانی خواب ہے، اس کو شیطانی خواب رہنے دیں، اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں، اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی، کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرس کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نانوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا چنا گیا، اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور وہ ان کے بچوں کی
नानो नफके वाला मामला भी लेके चलते हैं इस तरीके से। मैं वो मर्द हूं और मेरी वो जोजा थी कासिम नानोतवी। हाँ जाहिर है यही कहना चाह रहे हैं ना, जो पूरी दिहाड़ी सोचते रहते जे कोई कुछ खा भी नजर आता जे। हाँ जो दिहाड़ी लिटाओगे तो खा भी ही नजर आएगा ना। अगर ये लिखा होता ना कि मैंने दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा, फिर भी कोई शरीफाना ख्वाब होता उनका, कासिम को मैंने दुल्हन की शक्ल में देखा और उनका एक दूसरे से फायदा भी पहुंचा, वही जो आप समझ रहे हैं। हाँ जो मुफ्ती साहब वो खतरनाक अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी इधर तो लटाया था कुछ नहीं आगे हुआ। मुफ्ती साहब आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है, अगली किस्त जो है वो ख्वाब में हो गई थी। हाँ जी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कैसे करेंगे। मुफ्ती अब्दुल अजीज की भी इतनी लंबी दाढ़ी थी, और वो जो बच्चा था जिसको उसने लालच दिया हुआ था कि मैं तुझे आखिरी साल पास कर दूंगा, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। ये तो जबरदस्ती कर लेते हैं दाढ़ी वालों के साथ, और मर्जी से तो क्या कुछ करवाते होंगे। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए की हैं कि चूंकि मुफ्ती साहब ने खुद इस मौजू को छेड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की तालीमात से भागने की बजाय जने आर मुकाबला किया है, और खुद भी जलील हुए और अपने फिरके ने भी जलील कराया। हाँ यही कुछ हुआ। बाकी भी जवाब देख रहे हैं, मैंने 3 अकीदे अल मोहन्नद के बताए थे, जो जवाब आ रहे हैं लूले लंगड़े, उनकी सिर्फ मीम्स ही बन रही हैं। ये वजह थी जो ये जवाब नहीं देता था और कहता था मेरे पास बोरे हैं, बोरा खोल ले आ जाए विचू के निकले आ जाए, बवासीर निकली है विचू। हाँ इन्होंने बोरे जी बवासीर पई है। इनकी तालीमात कुरान और सुन्नत से अखज़ ही नहीं हुई। ये अपने बुजुर्गों की सूफियों की तालीमात को लेकर चल रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है कुरान और सुन्नत की तालीमात के साथ। इसलिए इनसे ये आप ना डिमांड करें कि ये कोई कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रखेंगे। इनके पास यही कुछ है। हमीयत देखें अगर मुझे गुस्सा आता है, मैं तो फिर भी अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुस्सा कर रहा हूं ना। इनका गुस्सा देखें अपने बुजुर्गों के लिए, किस तरह नथने फूले में और क्या क्या गालियां वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। ये अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के अपनी वो वीडियो नहीं देख सकता जो इसने लैंग्वेज यूज की है। इससे आप अंदाजा लगाएं, ये हमें दर्स देते थे कि इंजीनियर साहब अखलाक से बात करें। मेरा दावा है मुझसे ज्यादा सॉफ्ट बंदा ही कोई नहीं अल्लाह के फजल से, इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर। तुम सिर्फ अपने बाबों का दिफा करने निकले हो तो तुम्हारी जुबान से वो गालियां निकल रही हैं। अभी तो बाबों के अकायद और नजरियात का दिफा नहीं किया, वो तो इससे बड़ी चीज थी ना, वो तुमने क्या करना था। सिर्फ एक जिंदगी का मिशन है, किसी तरीके से हमारे बाबे जस्टिफाई हो रहे। देखें हमने कितने फिरके बदले। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब बात की है तो वो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों करते हैं। भाई वो मेरा अकीदा होता है, और जहां मुझे गलती लगती है मैं इस्लाह करता हूं। मुझसे ज्यादा रुजू किसने किए होंगे, मैं खुद बताता हूं कि मैं पहले बरेलवी रहा, फिर देवबंद, फिर अहले हदीस, शिया को भी स्टडी किया, सारे फिरके देखे। ये तो मैं खुद बता रहा हूं कि मैं हर तरफ रहा हूं, और उसके बाद रुजू करता चला गया। फिर वीडियोस में भी अगर कहीं मिस हैंडलिंग हुई है तो मैंने वीडियो अलग से रिकॉर्ड करवाई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और वक्तन फक्तन जो वीडियोस हैं वो अलग से फिर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी, ताकि वो सारी चीजें एक जगह जमा हो जाए। अब भी अगर मुफ्ती साहब आप भी थोड़ी जुर्रत करें और इन वाकयात के ऊपर रुजू कर लें तो क्या जाएगा, ना कोई मीम बनेगी, ना हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा होगा, हम तो उल्टा आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अपने बुजुर्गों को गलत मान लें तो इसमें हर्ज क्या है। ये कोई कुरान और हदीस का मसला तो नहीं है। हर्ज ये है कि अगर बाबे जाते हैं ना तो फिर का भी सारा फारिग होता है। इफ देयर इज नो कासिम नानोतवी देयर इज नो देवबंद। इफ देयर इज नो अल मुहन्नद अल मुफन्नद देयर इज नो देवबंदियत। इफ देयर इज नो हुसामुल अरमैन देयर इज नो बरेलवियत। ये मसला है। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी अवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है टीनेजर्स बच्चों के सामने, वो भी सुन लें किस तरह। जो मौलाना कासिम नानोतवी साहब हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, ये पैदा हुए हैं 1832 में 1832, और फौत हुए हैं 1879 में। बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए। 47 ईयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक। यानी मेरी एज में कासिम नानोतवी साहब फौत हो चुके थे, 47 ईयर्स। और इन कासिम नानोतवी साहब को जिन बड़े बुजुर्गों ने लटाया वो इनसे उम्र में बड़े थे। वो 1826 में पैदा हुए और 1905 में फौत हुए। उम्र भी उन्होंने ज्यादा पाई, सांप के डसने से वो फौत हुए। आखिरी 8-10 साल तो नबीना भी हो गए थे। ऑलमोस्ट 80 साल उन्होंने उम्र पाई। अब कासिम नानोतवी साहब फौत हो गए 1879 में। अगर ये 1879 में भी वाकया हुआ है, ये चारपाई पे लटाने वाला, ज़ाहिर है उसके बाद तो नहीं हो सकता है वैसे कब्र से भी निकल के लटा सकते हैं, लेकिन चले दुनियावी तौर पे 1879 के बाद ये वाकया नहीं हो सकता। अशरफ अली थानवी साहब
वो पैदा हुए हैं 1863 में और फौत हुए हैं 1943 में। 80 साल इनकी भी उम्र हुई है। लिहाजा अगर यह वाकया कासम नानोतवी साहब की वफात वाले साल का भी हो तो उस वक्त थानवी साहब की उम्र बनती है 16 साल, टीनेजर। अगर उन्होंने ये वाकया देखा है, वो तो नकल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि बेवकूफ है नकल करने वाला, इसलिए थानवी है। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के सामने उनके उस्ताद चारपाई पे एक दूसरे को लटाए और एक चीखे मारे, दूसरा फिर भी बाज ना आए। हाँ, और फिर सिर्फ यहां तक नहीं, फिर ख्वाब में भी उसको वो नजर आए और फिर आगे भी काम चले, तो शर्म ही करनी चाहिए। अब आप सुने, मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ने लगा। ये अरवाह सलासा जिसे हकायात औलिया इन्होंने डिक्लेयर किया, अशरफ अली थानवी साहब। हकायत नंबर 304। अशरफ थानवी साहब लिखते हैं कि एक दफा गंगोह की खानकाह में मजमा था। गंगोह उस जगह का नाम है, इसी की वजह से रशीद अहमद गंगोई साहब है। अहमद बरेलवी साहब इन्हें गंदगोई कहते हैं। जाहिर है जी, उसी की सुन्नत पर अमल करके इसने कहा कि मुंह की बवासीर है, वो अपने उनको को जो तुम्हारे कंपटीटर्स हैं, हमारे साथ क्या लेना देना। हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख लें। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। अच्छा देखे, ये आज तक इनकी काबर परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलहदा से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रेगनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रेगनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि दो बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर में और क्या करना मुफ्ती साहब। अल्लाह के बंदे, ये तो नजर आ रहा है कि ये दिमाग की बवासीर किधर है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहे जो कटो के कट। उन्होंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नन्स के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है। वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहीमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे रायविंड में, जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नीचे टलदा, जो मौलवी की सीधा इरादा कर ले वो नीचे टलदा। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरिफ थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो। ठीक है।